मानो चुप करे मामा यार। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें ये सारी आ जाती है। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही थी सबको? जी सर। सर स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं हुआ है सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? पहले एक सेकंड जी, आप मुझे बता दें। नजर आ रहा है ना स्क्रीन? नहीं सर, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा मुझे। एक सेकंड। अब आ रहा है जी स्क्रीन नजर? नहीं सर, तो शेयर नहीं हो रही स्क्रीन आपसे। जी जी बेटा, एक सेकंड।
अब आ रही सर है आ नजर? गई है। चल चल जी सर आ गई, शेयर हो गई है। चलो जी ठीक है, सॉरी वो कहीं शायद इशू हो गया। चलो जी शुरू करते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, now there are the different diagnostic tools that are using in the orthodontics for the diagnosis and the treatment planning purpose. जैसे हम किसी में भी जो है वो पेशेंट्स में हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, then some radiographs are required. So the most important radiograph that is required for the orthodontic diagnosis and the treatment planning is the lateral cephalometrics. Now basically the lateral cephalometric will help in basically it will help in the assessment of the position of the maxilla and the mandible, as well as it will help in the assessment of the position of the anterior teeth. कि आपके maxillary incisors और mandibular incisors की position कहाँ पर है. It will also help in the assessment that what type of the movement is required for the tooth. जैसे हम कहते हैं ना कि जी टिपिंग मूवमेंट हमने करनी है या बॉडीली मूवमेंट करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ द लेटरल सेफ. हम लेटरल सेफ में एंगल्स असेस करते हैं टीथ की, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करते हैं कि दैट इधर वी हैव टू गो फॉर द बॉडीली टूथ मूवमेंट और टिपिंग मूवमेंट. सेम विद द स्केलेटन. Suppose if we are going for the growth modification or the orthopedic effects, अगर हमने मैक्सिला की ग्रोथ को रिस्ट्रेन करना है या मैंडिबल की ग्रोथ को रिस्ट्रेन करना है, same for that through the lateral ceph we assess the position of the maxilla and the mandible, and according to that we decide that either we have to restrain the maxilla bodily or we have to pass the force below the center of resistance of the maxilla or above the center of resistance of the maxilla. So lateral cephalometric is very much important in the orthodontic diagnosis. Basically शुरू में हम डिस्कस करेंगे कि lateral cephalometric मशीन की क्या डिजाइन्स होती हैं मतलब, then we will the uses of the lateral ceph, then we will discuss the landmarks that are used on the lateral cephalometrics, and after that we will discuss the different analysis that are used in the orthodontics. Okay, cephalometric means the measurement of the head. It's a means of using the standardized skull radiographs to assess facial and the dentoskeletal relationship. There are two types of cephalometry, lateral cephalometry and the frontal cephalometry. अच्छा, एक चीज याद रखें कि ये जो रेडियोग्राफ्स होते हैं, लेटरल सेफ है या फ्रंटल सेफ, these radiographs are basically the two-dimensional pictures of a three-dimensional face. क्योंकि फेस में तीन डायमेंशंस होते हैं. ये बेटा आपने आपको म्यूट क्यों नहीं रखा बच्चा है? आवाजें आ रही हैं. क्या मानवी जी के मम्मी अलग बैठे दी में भाई मेरी आवाज नहीं आ रही. So the cephalometry or whatever the X-ray is a two-dimensional picture. ठीक है ना? आप सपोज करें जैसे लेटरल सेफ है, हम लेटरल जो व्यू आपका लेते हैं एक्सरे का, तो उसमें हमें दो डायमेंशन नजर आएंगी. एक वर्टिकल डायमेंशन नजर आएगी और एंटीरियर पोस्टीरियर जिसको सैजिटल डायमेंशन कहते हैं वो नजर आएगी. बट जो ट्रांसवर्स डायमेंशन होगी वो हमें इसमें डेफिनेटली लेटरल सेफ में नजर नहीं आएगी. हमें ये तो पता चलेगा कि फेस की हाइट क्या है और एंटीरियर पोस्टीरियर फेस की जो है वो लेंथ कितनी है, बट उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, आर्च विड्थ कितनी है,
तो वो हमें डेफिनेटली इससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, इट्स इन 2 डायमेंशनल पिक्चर्स. So there are the two types of cephalometry: lateral cephalometry, that is most commonly used, and then the frontal ceph. जो frontal ceph होता है उसकी 2 indications होती है: facial asymmetry, whenever there is a facial asymmetry. So to assess the facial asymmetry, हम lateral ceph के साथ साथ patient को frontal ceph भी advise करेंगे. Frontal ceph is basically anterior posterior ceph, जिसमें हमें पता चलेगा कि मैंडिबल या मैग्जिला अगर डेविएटेड है तो वो किस डायरेक्शन में ज्यादा डेविएटेड है. वी विल असेस के राइट साइड पे कितनी ग्रोथ है, लेफ्ट साइड पे कितनी ग्रोथ है और किस तरफ डेविएशन ज्यादा है. दूसरा ये है कि व्हेनेवर अगर मैग्जिला आपका नैरो है या मैंडिबल ज्यादा वाइड है, पोस्टीरियर क्रॉसबाइट ज्यादा है, उसमें भी हम फ्रंटल सेफ एडवाइस कर सकते हैं, जस्ट टू असेस दैट इधर द क्रॉसबाइट इज स्केलेटल और द डेंटल. तो जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज द लेटरल सेफ, क्योंकि फेशियल एसिमेट्री के केसेस वो इतने ज्यादा नहीं होते, बट व्हेनेवर देयर इज ए फेशियल एसिमेट्री केस तो फ्रंटल सेफ आप उसको लाजमी रिकमेंड करेंगे. एंड ये एक एमसीक्यूज भी आता है कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द फ्रंटल सेफ, तो याद रखें कि फेशियल एसिमेट्री उसकी इंडिकेशन होती है. अच्छा, बिफोर द सेफेलोमेट्री इट वाज द क्रेनियोमेट्री एंड सेकेंडली इट वाज द एंथ्रोपोमेट्री, एंड उसके बाद जो है वो सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ डेवलप हुआ. क्रेनियोमेट्री इज बेसिकली द असेसमेंट और द स्टडी ऑफ द स्कल. एंथ्रोपोमेट्री बेसिकली इज द स्टडी और द असेसमेंट ऑफ द फेस. ठीक है ना, ये होल फेस की अगर आप क्लिनिकल पिक्चर को जो असेस करते हैं उस पर जो मेजरमेंट करेंगे दैट इज द एंथ्रोपोमेट्री. मतलब उसके बाद जो है बेसिकली जब सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ डेवलप हुआ इन द 1930s, उसके बाद फिर सेफेलोमेट्री यूज होती है. अब सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है? इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स इंटेंडेड टू compress much of the information from the cephalogram into a useful diagnosis, treatment planning, and the assessment of the treatment effect. Now there are the different types of the analysis that are used in the orthodontics, like the Steiner's analysis, Downs analysis, जो है वो Ricketts analysis, ये different Witts analysis use होती है. मतलब ये different analysis होती है. Now the every analysis having a different parameter, every analysis having a different readings. ठीक है ना, तो हर एनालिसिस ने जो हर बंदे ने अगर कोई एनालिसिस बनाई है तो उसका एक अपना रेफरेंस प्लेन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंस प्लेन दे कंपेयर द फेस. ओके, सेफेलोमेट्रिक इक्विपमेंट जो मशीन होती है सेफ की, इट हैज बेसिकली द 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज द सेफेलोस्टेट और द हेड होल्डर. नंबर 2 इज द एक्सरे सोर्स. नंबर 3 इज द कैसेट होल्डर, या जिसको कहते हैं फिल्म होल्डर. जैसे हम अगर पेरिएपिकल रेडियोग्राफ्स करते हैं, नाउ इन द पेरिएपिकल रेडियोग्राफ्स में बेसिकली क्या होता है कि आप पेशेंट को फिल्म देते हैं और इंट्राओरली हम उसको पेशेंट की फिंगर रखते हैं, हम इसको कहते हैं इसको आप होल्ड करें, एंड देन हम एक्सरे जो सोर्स होता है उसको पोजीशन करते हैं. बट क्योंकि सेफेलोमेट्री जो है वो एक वेल डिफाइंड एक्सरे होता है, सो इट हैज एन इट्स ओन हेड होल्डर जो उसको बेसिकली आइडियल पोजीशन में होल्ड करेगा. Then X-ray source, for the X-ray definitely the X-ray source is required, and the film holder, cassette holder जो होता है basically, क्योंकि फिल्म बड़ी इस पे यूज होती है तो there is a film holder ताकि वो X-ray source, film and जो आपका head holder या जो face होगा वो तीनों एक ही लाइन में आ जाए. They all should be parallel to each other. Now ideally क्या होता है, जो ideal requirement होती है वो ये है कि दिस इज द हेड होल्डर. ठीक है ना, 2 जिसमें ईयर रॉड्स होंगे, मतलब ताकि फेस की जो पोजीशन है वो स्टेबल हो. दिस इज एन फिल्म प्लेन और द फिल्म होल्डर, एंड दिस इज द एक्सरे सोर्स. ठीक है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है. मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स टू द मिड सजिटल प्लेन इज 60 इंच और द 5 feet, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड सजिटल प्लेन to the film holder is the 15 centimeter. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों रखा है. मतलब अगर चाहते डेफिनेटली अगर 5 feet का स्पेस होगा तो डेफिनेटली
मशीन नीड्स द मोर स्पेस जहाँ पे हमने मशीन को रखना हो। अगर ये चाहते तो ये इसको कम भी कर सकते थे, 60 इंच की जगह यहाँ पे लगा देते और ये 15 इंच कर देते, मतलब बट वाई द 60 इंच? फॉर ए बेटर एक्सरे या एक अच्छे एक्सरे के लिए क्या होता है, जो आपकी एक्सरे बीम्स होती हैं, द एक्सरे बीम्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, अब वो पैरेलल कैसे करें? आप देखें पेरिएपिकल जो एक्सरे हम करते हैं, पेरिएपिकल एक्सरे में एक बीम इंडिकेटिंग डिवाइस होता है, जो वो वाइट कलर का जो ट्यूब होता है, जो पाइप जो तकरीबन एक 1 या 1.5 फुट का जो पाइप होता है, मतलब ठीक है ना, वो फेस पे आके लगाते हैं क्योंकि एक्सरे सोर्स उससे दूर होता है, मतलब तो उस जो आपका वो जो बीम, उसको कहते हैं बीम इंडिकेटिंग डिवाइस, उस बीम इंडिकेटिंग डिवाइस का जो पर्पस होता है, वो पर्पस ये होता है कि जो आपकी एक्सरे सोर्स आए वो पैरेलल आए। अच्छा, अब यहाँ पे जब डेफिनेटली एक्सरे सोर्स है, जब एक्सरे सोर्स अगर सपोज करें फेस के करीब होता तो क्या होता है कि एक्सरे जब उसमें से रेज निकलती तो वो रेज स्कैटर्ड होती है। तो इसमें क्या होगा, जब हम जितना डिस्टेंस से करेंगे, मतलब उससे क्या होगा, जब ये हम यहाँ से रेज पास करेंगे तो ये रेज डेफिनेटली ऐसे स्कैटर्ड होंगी, बट जो सेंटर में रेज होंगी दे विल बी पैरेलल टू द, वो रेज आपस में पैरेलल होंगी और वो फेस पे स्ट्रेट आएंगे, क्योंकि जो स्कैटर्ड होनी होंगी वो उसी एरिया से पहले स्कैटर्ड हो जाएंगे। जो डिस्टेंस का एडवांटेज होता है दैट इज जस्ट टू मेक द, जो आपका एक्सरेज होता है, जो रेज होती है उसको पैरेलल करने के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिड सर्जिकल प्लेन टू द फिल्म, ये कम क्यों है? ये कम इसलिए कि जाते जैसे ही रेज पास होंगी, ये जितना भी आपका फिल्म करीब होगा उतना आपका इमेज जो है वो लेस मैग्नीफाइड होगा, जितना फिल्म दूर होगा उतना मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी। सेफेलोस्टेट्स या जो हेड होल्डर्स होते हैं, दे आर ऑफ द 2 टाइप्स, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेफेलोमेट्री मशीन है ये 2 टाइप्स की होती है, एक है हिगले मेथड, एक है ब्रॉडबैंड मेथड। अब जो यूज होता है, जो एडवांस है, दैट इज बेसिकली द हिगले मेथड है, मतलब ठीक है। ब्रॉडबैंड मेथड पहले यूज होता था, ठीक है, ये पुराने जमाने की जो मशीन होती थी वो इस तरह होती थी, अल्दो तो पोजीशन हेड की वही है, ठीक है, बट इसमें ये होता था कि ये जो हेड होल्डर था ये मूवेबल नहीं था, मतलब ये फिक्स होता था, मतलब इसीलिए इसमें एक्सरे करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। अब जो मॉडिफिकेशन है दैट इज द हिगले मेथड, इट इज द मोस्ट मॉडर्न सेफेलोस्टेट जो है, दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रोटेटेड, एंड एक ही एक्सरे सोर्स होता है एंड एक ही फिल्म होल्डर होता है इसमें, मतलब patient can be repositioned in the course of various projections. Horizontal relationship of the head does not alter during repositioning. अच्छा, अब ये जो सेफेलोस्टेट होता है ना, इसका एडवांटेज ये होगा, अब ये सेफेलोस्टेट ये हर मशीन में एक जैसा होगा, मतलब अगर सपोज करें बिफोर द ट्रीटमेंट मैंने आज एक एक्सरे हैदराबाद से करवाया है, 2 साल बाद मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई एंड कंपेयर करना है कि कितना अफेक्ट आया है, रिजल्ट आया है उसका ट्रीटमेंट का। पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सरे हम लेंगे, मतलब अगर पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सरे हम किसी भी मशीन से लें तो वो उसके दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे वो मैच करेंगे आपस में, मतलब वाई, क्योंकि जो डिज़ाइन है सेफेलोमेट्री मशीन की वो हर मशीन की एक जैसी होती है, क्योंकि सेफेलोस्टेट जो है वो आपका एक स्टेबल पॉइंट होगा जो कि फेस को स्टेबल करेगा वहाँ पे। ये आजकल जो सबसे जो एडवांस जो मशीनें चल रही हैं वो इस तरह की होती है, दैट इज एन, ये आपका लेटरल सेट पे भी यूज होता है एंड दिस इज बेसिकली फॉर द ओपीडी यूज होता है। जैसे हमारे पास एडवांस डायग्नोस्टिक में जो वो मशीन लगी हुई है दैट इज एन 3D मशीन है, मतलब उसमें लेटरल सेफ भी है, उसमें ओपीडी भी है, उसमें सीबीसीटी भी है। तो ये आजकल जितनी भी न्यू जो भी मशीन आती हैं उसमें बेसिकली ये तीनों चीजें अवेलेबल होती है। पेशेंट पोजीशनिंग फॉर द लेटरल सेफ क्या होना चाहिए, कि हाउ यू विल पोजीशन द पेशेंट, मिड सजिटल प्लेन ऑफ द सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 60 इंच और 152 सेंटीमीटर फ्रॉम द टारगेट, जो उसका एक्सरे सोर्स से डिस्टेंस होना चाहिए। सेंट्रल बीम ऑफ द एक्सरे कोइंसाइड्स विद द transmittal axis with ear rods of the cephalostate,
and the distance of the mid sagittal plane to the film is 15 centimeter, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। Patient head with the Frankfurt plane is parallel to the floor, और यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि interpupillary line should be parallel to the floor. Interpupillary line should be parallel to the floor. इसको हम कैसे मशीन में कैसे करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम पेशेंट को यहाँ पे पोजीशन करते हैं तो एक डिस्टेंस पे जो है वो हम इस तरह की मिरर लगा देते हैं। मतलब एक डिस्टेंस पे हम उस पे मिरर लगा देंगे। जब अब क्योंकि अब तो ये डेफिनेटली ईयर रॉड्स है तो वो उसको स्टेबल कर लेते हैं, बट इसको फर्दर वो करने के लिए ताकि कोई भी उसमें एरर ना हो तो एक डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे कि मिरर लगा देंगे। पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी आईज में डायरेक्टली देखे मिरर में, तो डेफिनेटली जो इंटरपिपरल लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी टू द फ्लोर। टीथ टुगेदर इन द अक्लूजल पोजीशन। एक याद रखें, ओपीजी जो होता है उसमें क्या होते हैं, पेशेंट डिसअक्लूड करते हैं, बट इन द लेटरल सेफ में क्या होगा, टीथ विल बी इन द अक्लूजन। अगर टीथ अक्लूजन में नहीं होंगे तो आपका सेफ ठीक नहीं आएगा। ओपीजी में टीथ को डिसअक्लूड क्यों कराते हैं, ताकि हमारे पास टीथ जो है उसका अक्लूजल पोर्शन भी पूरा कंप्लीट आ जाए, मतलब उसमें दोनों कस्प ओवरलैप ना करें। मतलब इन द लेटरल सेफ हम क्यों कहते हैं कि वो टीथ अक्लूजन में होनी चाहिए, बिकॉज इफ द पेशेंट विल डिसअक्लूड द टीथ तो क्या होगा, दैट डिसअक्लूजन विल अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द मैंडिबल। जैसे ही पेशेंट, अगर आप देखें कि पेशेंट जो है वो माउथ ओपन करेगा, वाइड करेगा, तो मैंडिबल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। So if the mandible will move downward and backward, that will affect on the anterior posterior measurement of the mandible. That will also affect on the vertical position of the mandible. So to get the ideal या जो normal positions हैं of the vertical and the anterior posterior, teeth must be in occlusion, ठीक है, ताकि पेशेंट को कहेंगे कि वो उसमें properly occlude करें। Now in patients with the centric occlusion and the centric relation discrepancy, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, we will take the two x-rays both in centric occlusion and centric relation. अब क्या होता है centric relation और centric occlusion? Centric relation basically ये होता है कि position of the condyle in the glenoid fossa, and centric occlusion means the maximum intercuspation. बेटा एक और माइक अपने खोल देते हैं बीच में यार। वजन घटना है तो अरे दरवाजा बंद क्यों? बंद करना। So centric occlusion means the maximum intercuspation of the teeth, and centric relation क्या होता है? It is the position, basically the most superior and the anterior position of the condyle in the glenoid fossa. Ideally क्या होना चाहिए? Centric occlusion and the centric relation must be same. मतलब जब condyle centric relation में हो उसी टाइम पे centric occlusion भी होनी चाहिए, but normally 1 to 2 मिलीमीटर की discrepancy जो कि acceptable होती है। But when there is any discrepancy greater than 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है, अगर discrepancy ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये discrepancy यूजुअली होती है in patients with class 3 malocclusion. Class 3 malocclusion में क्या होता है? Usually in the growing patients in the class 3 malocclusion there is a premature contact at the incisal edge. जब पेशेंट क्लोज करता है तो उसका पहला कांटेक्ट जो है वो इंसाइजर्स पे आता है। जब जहां भी पहला कांटेक्ट टूथ का आएगा, दैट इज द सेंट्रिक रिलेशन पोजीशन। बट क्योंकि पहला कांटेक्ट उसका इंसाइजर का है तो पोस्टीरियर टीथ जो है वो डिसअक्लूड करते हैं, वो मिल नहीं रहे होते हैं। तो पेशेंट क्या करता है, टू मेक द मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, ताकि पेशेंट प्रॉपर्ली च्यू कर सके, मतलब पेशेंट मैंडिबल को एंटीरियरली मूव करता है।
तो इसको कहते हैं कि सेंट्रिक occlusion and centric relation discrepancy usually happens in class 3 malocclusion. अगर ऐसी कंडीशन होगी तो in that condition we will take the radiographs in both centric relation and centric occlusion. Centric relation जहाँ पे उसका initial contact होगा and centric occlusion जहाँ पे सारे टीथ आपस में contact होंगे. Now, what complications can occur during taking the lateral ceph? If ear rods are too large, definitely they can damage the ear. Firmly placed in the external auditory meatus, okay, and inflammation in the ears. A false mandibular position will be obtained. ठीक है, basically क्या होता है कि अगर ear rods जो है वो properly placed नहीं है in the ears, then definitely they can affect and they can अगर या तो आप उसको tightly fix कर देते हैं within the ear, तो वो भी definitely damage कर सकते हैं to the external auditory meatus. या जो है वो already अगर there is an inflammation in the ears और आप ये इसको ear rods अगर properly engaged, properly उसमें position नहीं करते, या आपने tightly fix कर दिए within the ear, तो वो उसको damage कर सकते हैं. Anatomical landmarks in the planes, ये आगे डिस्कस करेंगे सारे के जो लैंडमार्क्स होते हैं ना. आप सपोज करें कि मैंडिबल में कौन कौन से लैंडमार्क्स यूज होते हैं. दैट इज द कोरोनॉइड प्रोसेस होता है, कंडाइलर प्रोसेस होता है, ग्लिनॉइड फोसा, रेमस, एंगल ऑफ द मैंडिबल, मेंटल फोरामेन, चिन की पोजीशंस हो गया. ठीक है, तो इस तरह की यही चीजें फिर रेडियोग्राफ पे नजर आ रही हैं. मतलब मैक्सिला के फिर सॉफ्ट टिश्यू में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, दैट इज द फोरहेड, nasal bridge, tip of the nose, base of the nose, upper lip, lower lip and the chin. ये इस पोजीशन को जो मोस्ट एंटीरियर पॉइंट होता है ना, इसको ग्लाबेला कहते हैं. दैट्स ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, बेस ऑफ द नोज, अपर लिप, लोअर लिप एंड द चिन. ये तो सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क होते हैं. ये 5-6 पॉइंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सॉफ्ट टिश्यू पे. तो आप लोग ये याद रख लेंगे कि ग्लाबेला की पोजीशन जो है, bridge of the nose, tip of the nose, base of the nose, upper lip, lower lip and the chin. ये मैं एक्सरे में बताऊंगा कि फिर कौन कौन से कहाँ पे हम मार्क करेंगे. ये तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखे हुए, मतलब बट देयर आर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 पॉइंट्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं या मोस्ट कॉमन एनालिसिस में डिफरेंस में आती हैं. वो हम आगे उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे. मैं थोड़ा सा उसमें बता देता हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं. यहाँ पे नेजियन पॉइंट होता है, ये एनेस होता है, पॉइंट ए होता है. देन पॉइंट बी, जहाँ फिर आपका प्रोगोनियन होगा, फिर मेंटोन होगा, ग्नेथियन होगा, देन मेंटोन, यहाँ गोमियन होगा. दैट इज द आर्टिकुलर पॉइंट. कंडाइलियन पॉइंट हो गया, ये पीटीएम हो गया, यहाँ पीएमएस हो गया. ये यहाँ पे सेला का पॉइंट आ गया और यहाँ पे ऑर्बिटल आ गया. और ये दिस इज द कोरियन. ये जो मैंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स जो कि मोस्ट ऑफ द एनालिसिस में यूज होते हैं. और यही मैं आपको सारी इसकी डेफिनेशंस भी बताऊंगा और ये हम कैसे लोकेट करेंगे वो भी बताऊंगा. सेफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ यूज क्या होते हैं? यूजेस क्या होते हैं? फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द क्रेनियो डेंटल रिलेशनशिप, मींस क्रेनियल, सॉफ्ट टिश्यू एंड द डेंटल रिलेशनशिप. टू असेस द सॉफ्ट टिश्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ द फेशियल पैटर्न, कि हम कहते हैं ना कि जी पेशेंट का फेशियल पैटर्न क्या है, मतलब कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या स्ट्रेट है, हाई एंगल है या लो एंगल है, वो हम असेस करेंगे डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द सेफ. देन प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रोथ. अच्छा, ग्रोथ प्रेडिक्शन के क्या होता है? पहले हम यूज करते थे हैंड रेस्ट रेडियोग्राफ्स. हैंड रेस्ट रेडियोग्राफ्स वर यूज्ड टू असेस के पेशेंट की कितनी ग्रोथ रिमेनिंग है. तो अब क्या होता है? नाउ वी यूज द लेटरल सेफ टू असेस द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पेशेंट. वो कैसे असेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द वर्टिब्रीज. जो आपके वर्टिब्रीज होते हैं उसकी पोजीशन से, उसके शेप से बेसिकली हम असेस करते हैं कि पेशेंट का ग्रोथ स्टेटस क्या है. अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रिजल्ट्स बिटवीन द assessment of the growth through the lateral ceph
and assessment of the growth through the hand wrist radiograph, तो आप ये समझ लें कि दोनों की सेम होती हैं। इसीलिए अब क्या होता है कि अब हम हैंड wrist radiograph एडवाइज नहीं करते टू द पेशेंट्स, because we can assess the growth with the help of the lateral ceph. Okay, to monitor the skeletal-dental relationship, detection of any pathology, assessment of trauma, and study of relationship before, following, and several years later. जो हम growth studies करते हैं, in the growth studies, अगर facial growth studies करते हैं, तो serial radiographs लेते हैं उसमें. Serial lateral cephs are used in that to assess the facial growth. Uses in the orthodontics, it helps in the diagnosis and the treatment plan. हम कैसे assess करेंगे? देखिए, एक होगा ना dental relationship. Dental हम assess कर रहे हैं कि suppose the patient is dentally class 1, class 2 और class 3, वो तो हम angles जो analysis है हम वो देख लेंगे मतलब. But skeletal assessment के skeletally patient is class 1, class 2 और class 3, तो वो हम कैसे assess करेंगे? That is through the help of the lateral ceph. Then it allows the assessment of anterior, posterior, vertical and the bilateral skeletal pattern. ठीक है, help करेगा कि vertical कैसे होगा, anterior, posterior क्या है उसका मतलब, और denture basis की position of the maxilla or the mandible, incisor positions and the angulations, detection of the unerupted teeth and the soft tissue profile. It also helps during active treatment and the end of the functional appliance therapy. Suppose अगर if the patient is in the growing age और हमने patient को functional appliance दिया हुआ है for the growth modification, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि before the treatment हमने lateral ceph कराया, we advise the patient functional appliance. Patient use the functional appliance for the 1 year. After 1 year, we will again take the lateral ceph to assess the difference कि functional appliance ने कितना effect किया. At the end of the treatment, just to compare between the pre-treatment and the post-treatment, during and after the retention to assess the amount of the relapse. या अगर suppose करें कि आपने post-treatment तो ले लिया, but patient ने functional retentive appliance use किया है for 1 year or the 2 year, उसके बाद अगर आप X-ray करना चाहें तो X-ray करके हम compare कर सकते हैं कि इसमें कितना relapse हुआ है. And to monitor the growth through serial radiographs are comparing with the norms for the age, sex and the race. For example, the Bolton जो studies है उसने compare किया है. तो growth जो हम monitor करते हैं with the help of the lateral ceph वो करते हैं through serial radiographs. Now suppose एक patient है जिसमें हमने plan किया है कि we have to go for the orthognathic surgery. हम कहते हैं कि usually जो mandible की growth stop होती है that is in the age of the 17 and the 18 years. सपोज करें पेशेंट की एज 17 ईयर्स है, ठीक है, तो क्या हमें वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो हम सीरियल सेफ लेंगे. कैसे लेंगे? सपोज एक हम एक्सरे ले लेंगे एग्जैक्टली एट द 17 ईयर्स ऑफ द एज, देन वी विल वेट फॉर द 6 मंथ्स. 6 महीने बाद हम दूसरा लेटरल सेफ लेंगे. देन वी विल कंपेयर बिटवीन द फर्स्ट सेफ एंड द सेकंड सेफ, जो हमने 17 ईयर्स पे लिया है एंड 6 महीने बाद जो आपने लिया है, टू कंपेयर. नाउ सपोज इफ देयर आर चेंजेस, इट मींस कि अभी भी ग्रोथ हो रही है. अगर दोनों की रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम हो तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई है. नाउ वी कैन गो फॉर द सर्जरी. सपोज आपने एक 17 ईयर्स में कराया, एक 6 महीने बाद कराया 17 एंड हाफ में, उसमें चेंजेस थी, अगेन वी विल वेट फॉर द 6 मंथ. फिर एक 18 में कराएंगे. जहाँ भी सेफ की चेंजेस स्टॉप हो जाएंगी वहाँ पे हमारी ये असेसमेंट होगी कि नाउ द ग्रोथ इज ओवर, देन वी कैन गो फॉर द ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी. सो दिस इज बेसिकली द सीरियल रेडियोग्राफ्स. एंड ड्यूरिंग द ग्रोथ अगर सपोज करें कि पेशेंट 9-10 ईयर्स का है, टू असेस द स्पर्ट फेज कि पेशेंट जो है वो स्पर्ट फेज में है या नहीं है, या स्पर्ट फेज गुजर चुका है, या स्पर्ट में भी कितना टाइम है. दैट इज थ्रू द लेटरल सेफ with the to assess with the position of the shape of the vertebrae. Vertebrae की shape को हम assess करके बताते हैं कि patient जो है वो spurt से
स्पर्ट में है या स्पर्ट में भी टाइम है, बिकॉज जब भी हम फंक्शनल अप्लायंस देंगे तो आइडियली वी विल गिव द फंक्शनल अप्लायंस ड्यूरिंग द स्पर्ट फेज। स्पर्ट फेज ग्रोथ का वो फेज होता है जिसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, उसमें एक्सेसिव ज्यादा ग्रोथ होती है। सो वी टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एक्सेसिव ग्रोथ, उस स्पर्ट फेज का एडवांटेज लेके हम फंक्शनल अप्लायंस पेशेंट्स को देते हैं। Okay, now how we will take the measurement on the SEF? Two methods, directly from the radiographs या indirectly on the tracing। हम दो तरह से ले सकते हैं कि डायरेक्टली आप रेडियोग्राफ पे आप ट्रेसिंग ना करें और डायरेक्टली रेडियोग्राफ पे ले लें, या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हम पहले ट्रेसिंग करते हैं, एक्सरे के ऊपर हम जो है वो बटर पेपर रख के हम ट्रेसिंग करेंगे एंड देन वी विल टेक द मेजरमेंट ऑन दैट ट्रेसिंग। क्योंकि हमारे पास तो यहाँ वो हार्ड एक्सरेज होते हैं, एक्सरे फिल्म जो है वो हार्ड होता है, तो हम उसको पहले ट्रेस करते हैं ताकि वो एक्सरे फिल्म सेव रहे। अब क्या है कि क्योंकि अब हमारे पास ये डेफिनेटली डिजिटल एक्सरेज हैं, ठीक है, डिजिटल एक्सरे में डेटा जो है वो कंप्यूटर में सेव होता है, तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम जो एक्सरे है उसका प्रिंट हम ले लें ऑन द पेपर। अगर हम पेपर पे प्रिंट ले लेते हैं तो हम डायरेक्टली पेपर पे मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड एक्सरे है तो फिर आप उस पर ट्रेसिंग करें एंड देन इनडायरेक्ट वे से कर सकते हैं। मेजरमेंट्स आर टेकन इधर बाय द हैंड, मैनुअल मेथड और बाय द डिजिटाइजिंग। ठीक है, जैसे मैंने आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी में बताया था कि दो मेथड होते हैं, या तो हम मैनुअल टेक्निक से करें या आप जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से थ्रू करें। क्योंकि नाउ ये जो हमारे पास जो भी मशीनें या जो चीज़ें हैं दैट जो सेफ की जो मशीनें हैं दे बेसिकली डिजिटल मशीनें हैं, तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि देयर आर द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू असेस द क्या कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेटरल सेल। आपने एक्सरे लिया, एक्सरे विल डायरेक्टली शिफ्ट होगा टू द दैट सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट एनालिसिस होंगे, मतलब ठीक है, आप क्लिक करेंगे कि जी स्टाइनर्स एनालिसिस के पैरामीटर्स, तो वो डेफिनेटली स्टाइनर्स एनालिसिस के सारे पैरामीटर्स आपको असेस करके देगा कि इस सेफ में स्टाइनर्स एनालिसिस के पैरामीटर्स जो हैं उनके रिजल्ट्स ये हैं। तो डेफिनेटली जो डिजिटाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज द टाइम सेविंग है, एंड एक्यूरेसी में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डायरेक्टली करें विद द हैंड मैनुअल टेक्निक या थ्रू द कंप्यूटर करें, बाकी डेफिनेटली 0.5 या 1 डिग्री का डिफरेंस इसमें आ सकता है। What are the disadvantages? There might be errors in recording the values that may affect the assessment of the results. Suppose करें कि अगर कोई पोजीशन हम किसी लैंडमार्क की पोजीशन हमने exactly proper locate नहीं की, if there is any change in the location of the any point that can affect जो हम values assess करेंगे उसमें, errors may obscure the difference of values from the norms. Any method used we should consider the two factors. अच्छा, जो भी एनालिसिस हम असेस करेंगे, अब एनालिसिस जो है उसकी तो हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी एनालिसिस करें। मतलब एक अच्छी एनालिसिस वो होगी जिसकी वैलिडिटी भी हो एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो। मतलब वैलिडिटी क्या है, वेदर द लैंडमार्क और द मेजरमेंट इज true representative of the structure under the consideration। मतलब ऐसी एनालिसिस जिसमें ऐसे लैंडमार्क्स यूज हुए हों जो कि बेसिकली उस स्ट्रक्चर को या उस बॉडी पार्ट को लोकेट कर रहे हों, एंड वो जो भी लैंडमार्क हो दैट लैंडमार्क शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। मतलब अगर हम सेकंड टाइम वही हम एनालिसिस करें तो उस लैंडमार्क को हम इजीली रिप्रोड्यूसेबल कर लेते हैं ताकि हम इजीली उसको लोकेट कर सके। मतलब वो एनालिसिस अच्छी हो जिसकी वैलिडिटी भी हो और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हो। Okay, what are the types of errors in the cephalometry? They are the radiographic projection errors, errors within the measuring system, या errors in the landmark identification.
जो प्रोजेक्शन एरर्स हैं उसमें यूजुअली जो प्रॉब्लम होता है वो मैग्निफिकेशन का होता है। अगर ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन द मशीन, या अगर सपोज करें कि इवन आफ्टर द हेड होल्डर अगर टेक्नीशियन प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, हेड की पोजीशन प्रॉपर उसने नहीं रखी, एंड देयर इज एन मैग्निफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इशू में क्या होगा, ऑन द लेटरल शेफ हम दो चीजें करते हैं, वन इज द लीनियर मेजरमेंट, अदर इज द एंगुलर मेजरमेंट। जो एंगुलर मेजरमेंट होगी वो तो रिमेन कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी मैग्निफिकेशन के साथ, चाहे मैग्निफिकेशन ज्यादा हो या कम हो, तो एंगुलर मेजरमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। जो लीनियर मेजरमेंट होगी वो अफेक्ट हो जाएंगे। सपोज करें कि आइडियल जो नॉर्मल आप मेजरमेंट कोई है 10 मिलीमीटर है, ठीक है, मैग्निफिकेशन होने के बाद वो 15 मिलीमीटर हो जाएगा। बट एंगुलर मेजरमेंट इफ द नॉर्मल एंगल सपोज 20 है, अगर आप उसको कितना भी मैग्नीफाई कर लें वो एंगुलर मेजरमेंट विल रिमेन द सेम। एरर्स इन द लैंडमार्क आइडेंटिफिकेशन, लैंडमार्क आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली अफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ द रेडियोग्राफिक इमेज, कि आपका रेडियोग्राफ कितना अच्छा है, प्रिसिशन ऑफ द लैंडमार्क, डेफिनेशन एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द लैंडमार्क एंड ऑपरेटर रिलायबिलिटी। एक तो रेडियोग्राफ की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट करती है आइडेंटिफिकेशन को। दूसरा, जो आप लैंडमार्क असेस कर रहे हैं, इधर दैट लैंडमार्क इज रिप्रोड्यूसिबल और नॉट। नंबर 3 डेफिनेटली जो ऑपरेटर रिलायबिलिटी है, कि वो जो पोजीशन लोकेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितनी नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू दैट। हाउ टू रिड्यूस द एरर्स, देयर शुड बी द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द एनालिसिस। मतलब आप ऐसी एनालिसिस ना लें जो कि वैलिड भी ना हो, जिसके लैंडमार्क रिप्रोड्यूसिबल भी ना हो, जिसमें लैंडमार्क डिफिकल्ट हो, तो आप ऐसी एनालिसिस नहीं लेंगे। ऐसी एनालिसिस जिसके पैरामीटर्स इजी लोकेट करना, जो कि ट्रू जो आपका स्ट्रक्चर हो उसको डिफाइन करते हो, इजीली रिप्रोड्यूसिबल लैंडमार्क्स हो, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। देयर शुड बी द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉइंट डेफिनेशन, जिस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, गुड क्वालिटी फिल्म एंड द स्टैंडर्डाइजेशन, डुप्लीकेट मेजरमेंट्स होनी चाहिए। इफ देयर इज एनी एरर देयर शुड बी, उसमें अगर ऐसा हो कि उसकी कैलकुलेशन हम कर सकें। Care when interpreting the results, automated computerized radiographic identification of the landmark। आप क्या करेंगे, लैंडमार्क अगर हम कंप्यूटर में करेंगे तो उसके एरर्स जो है वो कम हो सकते हैं एज कंपेयर टू द जो आप मैनुअल टेक्निक से कर रहे हैं। अच्छा, जब हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, सपोज अगर हम वर्टिकल को असेस कर रहे हैं, अगर आपके पास फाइनल ईयर की वो हिस्ट्री शीट हो, तो हिस्ट्री शीट में अगर आप देखें तो इन द लेटरल सेफलोमेट्रिक जो आपकी रीडिंग्स लिखी हुई है, तो वो रीडिंग्स तकरीबन कोई 12-15 रीडिंग लिखी हुई है। हालांकि इन द रेडियोग्राफ द लेटरल शेफ वी बेसिकली क्या असेस करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द मैक्सिला एंड द मैंडिबल, ठीक है। उसमें हम असेस करते हैं कि पेशेंट इज स्केलेटली क्लास 1, 2 और 3, नंबर 1। दूसरी चीज हम असेस करते हैं वर्टिकल एंगल ऑफ द फेस, कि वर्टिकली पेशेंट इज हाई एंगल और द लो एंगल। तीसरी चीज हम असेस करते हैं द एंटीरियर जो इंक्लिनेशन होती है ऑफ द इंसाइजर, मैक्सिलरी इंसाइजर। चौथी चीज इंक्लिनेशन ऑफ द मैंडिबुलर इंसाइजर, एंड जो पांचवी चीज होती है दैट इज द पोजीशन ऑफ द अपर लिप एंड द लोअर लिप। ये बेसिकली 5 चीजें होती है ना। अब 5 चीजें हैं तो उसके लिए हमें मेजरमेंट 5 लेनी चाहिए आंसर। बट अगर आप हिस्ट्री शीट में देखें तो उसमें 15 से 20 लिखी हुई है रीडिंग। वो क्यों लिखी हुई है, जस्ट टू कंफर्म। नाउ सपोज अगर हमने वर्टिकल असेस करना है फेस का, हम किसी एक एनालिसिस का पैरामीटर नहीं लेंगे, हम क्या करते हैं मल्टीपल एनालिसिस का पैरामीटर लेते हैं, ताकि जो हमारा डायग्नोसिस हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर हम सपोज करें हम 5 रीडिंग्स ले रहे हैं टू असेस द वर्टिकल ऑफ द फेस, और ज़रूरी नहीं कि वो 5 रीडिंग्स जो है वो आपस में मैच करें। हो यूजुअली ऐसे होता है 3 या 4 रीडिंग्स आपस में मैच कर रही होती है, एक रीडिंग जो है वो डिफर कर रही होती है। तो फिर हम यूजुअली क्या करते हैं, तो जिस तरफ रीडिंग्स ज़्यादा जो आपको बताएंगी, सपोज 4 रीडिंग्स में रिजल्ट आ रहा है द पेशेंट इज हाई एंगल, फेस इज हाई एंगल,
और 5वीं रीडिंग कह रही है कि फेस इज नॉर्मल है या ज़्यादा हाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो जो 4 पैरामीटर्स होंगे हम उसको जो भी ज़्यादा पैरामीटर जो हमें रिजल्ट देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर लेंगे तो देयर आर द चांसेस के आपकी डायग्नोसिस गलत हो जाए। Areas that undergo alteration during the growth and the treatment, किस किस एरिया पे changes in the overall face में हो सकती हैं, changes in the maxilla and the dentition, changes in the mandible and the dentition, amount and direction of the condylar growth and mandibular rotation. ये changes होती हैं during the treatment or during the growth. What is the color coding? Tracing की color coding क्या होती है? हम यहाँ पेंसिल से करते हैं, वो पेंसिल से इसलिए करते हैं बिकॉज दैट इज ब्लैक। सो द प्री ट्रीटमेंट जो ट्रेसिंग होगी दैट विल बी थ्रू द ब्लैक। पोस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है तो उसकी जो होगी दैट इज थ्रू द रेड। प्रोग्रेस अगर मिड ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं दैट इज थ्रू द ब्लू। एंड रिटेंशन का जो होगा आफ्टर, सपोज हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, जो हम एक्सरे करेंगे दैट इज ट्रेसिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक। मिड ट्रीटमेंट में आप एक्सरे कर रहे हैं उसकी ट्रेसिंग करेंगे विद द ब्लू। आफ्टर द ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए पोस्ट ट्रीटमेंट ट्रेसिंग विल बी थ्रू द रेड। फिर आपने पेशेंट को रिटेनर दे दिया, रिटेनर के 1 साल बाद अगर हम एक्सरे लेते हैं तो दैट एक्सरे वी विल ट्रेस विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन। ये जब हम सारे सपोज करें कि ट्रेसिंग कर लेते हैं तो यूजुअली फिर कंपैरिजन हम इस तरह करते हैं कि आप कैसे कंपेयर करते हैं। सुपर इम्पोजिशन इसको कहा जाता है, सुपर इम्पोजिशन। हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं सारी ट्रेसिंग्स को, मतलब सारी ट्रेसिंग को सुपर इम्पोज करके हम असेस करते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस। मतलब अगर मेरे पास ये ट्रेसिंग किसी की आ जाए जिसमें ब्लैक भी हो, रेड भी हो और जो है वो आपका ग्रीन भी हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेसिंग देख के बता सकता हूँ कि बिफोर द ट्रीटमेंट पेशेंट की क्या कंडीशन थी, फिर क्या हुई और उसके बाद क्या हुई। तो दिस इज ये कलर कोडिंग याद रखिए कि प्री ट्रीटमेंट ब्लैक है, पोस्ट ट्रीटमेंट रेड है, मिड ट्रीटमेंट ब्लू है, आफ्टर द रिटेंशन दैट इज द ग्रीन। The cranial base achieves most of the growth potential at an early age. Usually the intersphenoidal and the interethmoidal synchondrosis close by 6 to 7 years. The only synchondrosis remaining is the spheno-occipital synchondrosis, जो कि later on जाके close होता है। These are the different cephalometric analysis. ये फिर हम next time discuss करेंगे। horizontal ये जो इसके different plans है and then the points। इसमें बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लें। देखिए जो मैं आज के जो प्रेजेंटेशन थी उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो ये है कि वो डिस्टेंस याद रखें फिल्म का और एक्सरे सोर्स का, मिड सैजिटल प्लेन का। यूजेस याद रखें, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द लेटरल सेफ। उसकी कलर कोडिंग याद रखें कि क्या उसकी कलर कोडिंग होती है, एंड व्हाट आर द एरर्स क्या हो सकती हैं इन द लेटरल सेफ। इसने पूछना है बेटा? हेलो, Thank you so much, sir. Inshallah. thank you very much. Thank you, sir. Thank you.